Good evening, dear students. My name is Dr. Kashif Rada Khan, Director at HCB Education and HCB Leadership Square. Today, this is second session of our employability skills training. The main formal name of this training is First Job Success, and today we are attending the second session of this training. This training is also called Essential Employability Enhancement Training. So in the last session, we have already discussed about 6 stages of job success. We covered the important and distinguishing information that interview success is actually not job success. Rather, for your job success, there are 6 stages and there are different challenges and needs in all those 6 stages. Today, we are going to cover CV writing, effective CV writing. So in order to discuss the main issue about CV, I am going to share my screen with you. So this is the screen that I am sharing with you. Today's session is part of First Job Success. As I have already said, we will talk of effective CV writing. So the question is, what is CV? CV kya hai? Isn't it? And we need to understand, in the beginning, we need to understand what is CV and what is the concept of CV. There are some misconceptions about CV also. Like I have seen many students saying biodata, resume and CV. CV, resume, biodata, ये तीनों terms लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन actually what is correct? CV is correct आपके लिए, for majority of the students and for very especially for freshers. You need to write your CV. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको इस बात का दे दें कि CV क्या है, रेज्यूमे क्या है और बायोडेटा क्या है, क्योंकि बहुत बार हमने ये देखा है कि लोगों ने इसको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया है और उससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स एंड पीपल who are using it, they do not have exact concept of these all three things, because these all three are not same. CV, resume और biodata ये तीनों सेम नहीं है, ये तीनों में डिफरेंस है. सबसे पहले आप बात करें CV क्या है, तो CV is your professional information and this is mainly written for applying for a job. किसी जॉब में अप्लाई करने के लिए आप अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को एक पार्टिकुलर सिस्टम में लिखते हैं, उसे CV एक्चुअली कहते हैं. इसका मकसद होता है जॉब में अप्लाई करना, और CV इज रिटन अबाउट यू. CV आपके बारे में लिखी जाती है और आपके नेसेसरी और रेलिवेंट प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को उसमें दर्शाया जाता है. सेम इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है रेज्यूमे में भी. तो जहां तक कंटेंट की बात है तो रेज्यूमे और CV में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है साइज में. CV is detailed professional information about you and resume is concise professional information about you. दोनों का पर्पस है जॉब में अप्लाई करना. CV और रेज्यूमे दोनों जो इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं वो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन होंगे. मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप जॉब में अप्लाई कर सकें. तो जॉब में अप्लाई करने के लिए यू नीड टू इंक्लूड योर पर्सनल इंट्रोडक्शन, योर एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, etc, and all relevant information that are professionally important for your job and employment, isn't it? तो ये दो सिमिलर हैं. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है साइज का. CV should be detailed and resume would be concise. जो डिफरेंट
इन तीनों में जो डिफरेंट है वो है बायोडेटा. बायोडेटा इज एक्चुअली नॉट, बायोडेटा इज ऑल्सो योर इंफॉर्मेशन, वो भी आप ही के बारे में इंफॉर्मेशन है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन ओनली एंड स्पेशली डिजाइन फॉर जॉब. यानी बायोडेटा भी आप ही की इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये सिर्फ प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन ही नहीं है और इसको जॉब में अप्लाई करने के मकसद से नहीं लिखा जाता है. ये आप ही की इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, लाइक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, योर फिजिकल एट्रीब्यूट्स, योर क्वालिटीज, योर प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन ऑल्सो, योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन and your position, your career stage, etc. Your family background and information about your family members, your khandan, your lineage, etc. etc. ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसकी जरूरत एम्प्लॉयर को नहीं होती है. एम्प्लॉयर को आपके बारे में उन प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है जो रेलिवेंट हैं जॉब से. अदरवाइज आपकी पर्सनल सारी इंफॉर्मेशन, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपके लीनियज, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपकी हेल्थ, आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स, आपकी पर्सनल हॉबीज etc और पर्सनल रूटीन, उनसे कंपनी को कोई खास लेना देना नहीं है. सो इन योर professional life, you need CV and resume. You do not need biodata to send to your company and employer. Is this clear? So in the beginning, I wanted you to know this. ये चीज आपको जानना जरूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो बायोडेटा की CV की जगह बायोडेटा और रिज्यूमे की जगह बायोडेटा ये आप बोलते रहेंगे, ऐसा सही नहीं है. You do not need to use biodata in your professional life and for your job. Now move ahead. ये हमने आपको आपके CV, रिज्यूमे और बायोडेटा का एक इंट्रोडक्टरी डिफरेंस बता दिया. आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव CV राइटिंग. आज के टॉपिक में स्ट्रक्चर है, तो पहले आप ये देख लें कि आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं. वी विल टॉक ऑफ इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ CV, कंपोनेंट्स ऑफ CV, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्वालिटीज ऑफ CV एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CV. CV का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये बातें आज हम लोग करेंगे. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोडक्शन. सो व्हाट इज CV, isn't it? And there are some background also, isn't it? Your CV is actually written form of communication. ये एक written form of communication जो आप लिखते हैं. This is an organized set of professional information about you that you write in order to apply for a job. Your CV should be designed as per the requirement of the job that you are applying for, isn't it? हमने आपसे ये कहा कि आपकी CV आपका एक written form of communication है जो जिसमें आप एक sequential set of information एक right order में आप लिखते हैं. उसको लिखने का मकसद क्या है, जॉब में अप्लाई करना. और आपका CV जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए, isn't it? Your CV is actually the ambassador of you. आपकी CV आपका एम्बेसडर है, यानी आपका CV आपके बारे में बोलने वाली चीज है. आपका CV आपको रिप्रेजेंट करता है. It carries all professional and employment related information. This creates a good or bad impression of you in your absence. इस बात को आप ध्यान से सुनिए. ये जो सेंटेंस अभी हमने आपसे कहा कि this creates a good or bad impression of you in your absence. आपके एब्सेंस में आपके बारे में या तो पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है आपका CV या नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है, isn't it? तो ऐसा कब होता है? When you apply for a job, जब कोई वैकेंसी निकली है, कंपनी ने CVs इनवाइट किए, सैकड़ों लोगों ने या हजारों लोगों ने अप्लाई किया, isn't it? You have sent your CV. आपने अपने CV ईमेल से भेज दिया है, isn't it? And then at this point of time,
When you do not have an opportunity to interact with the employer, your CV is interacting with the employer in your absence. आपके absence में आपका CV आपको represent कर रहा है, तो आपका CV आपका एम्बेसडर बन करके आपके एम्प्लॉयर के पास है। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप इस बारे में जान लें कि जब आपने CV अप्लाई कर दिया है जॉब में, तो आपके CV के साथ क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद योर CV। जब आप इन बातों को जानेंगे तो फिर आपको अपनी CV इफेक्टिव बनाने में मदद मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, मान लिया कि 1000 लोगों ने या सैकड़ों लोगों ने अप्लाई किया है। कंपनी एक CV को पढ़ने के लिए कितने मिनट्स देगी? एम्प्लॉयर जो CVs को चेक कर रहा है वो कितने मिनट देगा? एक्चुअली उसके पास 1 मिनट भी, अगर मान लिया कि स्टूडेंट्स को अगर ऐसा लगता है कि कंपनी हमारे CV को पढ़ने में 1 मिनट देगी, तो अगर 1000 लोगों ने अप्लाई किया है तो क्या कंपनी हजारों मिनट्स CV सिर्फ देखने के ऊपर देगी? ऐसा नहीं। रिक्रूटर्स आर नॉट गोइंग टू गिव एनी मिनट टू अ CV को 1 मिनट कंपनी देने वाली नहीं है, ऐसा नहीं होता है। Actually, an employer or a recruiter can give maximum they can give 30 seconds to take decision whether they have to call you up or not. मैक्सिमम वो 30 सेकंड वो देंगे। लेकिन एक बात और भी ध्यान आप रखिए, एक बात और भी ध्यान रखना है कि that even 30 seconds are not there, you don't have an opportunity of 30 seconds even. Your CV and subject of your CV has only 5 to 10 seconds to communicate to the employer that employer should open your CV. ध्यान से इस बात को आप समझिए। आपने अप्लाई किया, ईमेल के थ्रू भेजा है अपना CV, आपकी तरह सैकड़ों लोगों ने अप्लाई किया है। एम्प्लॉयर सारी CV को देखने के लिए उसके पास ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं है, तो आपकी CV ओपन किया जाए, इसके लिए जरूरी है कि आपका CV, आपका सब्जेक्ट एम्प्लॉयर को 5 सेकंड के अंदर वो इम्प्रेस कर ले इस बात के लिए कि दैट एम्प्लॉयर शुड ओपन योर CV। आपका CV ओपन करके देखा जाए या नहीं, या आपके CV को यूं ही इग्नोर कर दिया जाए, इसके लिए कंपनी आपको 5 सेकंड 10 सेकंड ये आपके पास है। तो आपके पास नहीं है, दरअसल वो आपकी CV के पास है 5 सेकंड 10 सेकंड, जिसमें वो आपको रिप्रेजेंट कर सके। Isn't it? Now you should understand the value of your CV. In your absence, your CV is your ambassador, and this can create a positive or negative or any neutral impression about you. Isn't it? Now move ahead. What is meaning of a CV? CV is curriculum vitae. This is an organized, detailed information about you. Yes. Excuse me, sir. Then what? Your voice is breaking. What is the correct CV? Full form of CV is curriculum vitae. Your voice is actually Okay, breaking. the right pronunciation is vitae. Vitae. Curriculum Vitae. vitae. Okay. Yes. Vitae. Yes. Okay. It's clear to me. Okay. This is an organized, pay attention to the words used, organized and detailed information about you. Your name, contact details, your introduction, your objective. Objective means career objective. Qualifications, relevant work experience, job responsibilities in that work experience, your research and industrial exposures if you have,
your personality, professional qualities, skills, strengths, and other details. These are the content of a CV. Importance of a CV. क्या CV हमारे लिए important है या CV हमारे लिए important नहीं है? हम किसी भी तरह की carelessness CV के साथ कर सकते हैं. Is it so? Can we afford carelessness with our CV? क्या हम अपने CV के साथ carelessness afford कर सकते हैं? Actually ऐसा नहीं है. मैं इस बात पे emphasize इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जब हमें जॉब में अप्लाई करने के लिए अपना CV बनाना है तो वो हमने किसी का भी देख करके बना बनाया किसी का फॉर्मेट में नाम चेंज कर दिया और अपना नाम रख दिया और हमने CV बना लिया, हमारी CV बन गई. ऐसा उनको लगता है कि वो CV बन गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक योर CV. अगर आपको अपना CV बनाना नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि आपका CV आपके एम्प्लॉयर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा आपके बारे में, और आप अपने CV के द्वारा अपने एम्प्लॉयर से और रिक्रूटर से आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं. तो वैसी सिचुएशन में जब आप कम्युनिकेशन ही एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ, तो आपका इंटरव्यू में बुलाया जाना इसका चांस कम है. आपका CV का शॉर्टलिस्ट होना इसका चांस कम है. आपको प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में या फिर मेन इंटरव्यू में इनवाइट करना इसके चांसेस कम हो जाते हैं. लेकिन अगर आप अपने CV के द्वारा अपने एम्प्लॉयर से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फिर आपको चांस है कि कंपनी विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू. इजंट इट? इस तरह की सिचुएशन का आपका CV सामना करता है. अब उसकी इंपॉर्टेंस पे आप कुछ गौर कर लें. यू कैन अप्लाई फॉर ए जॉब विद योर CV ओनली. CV इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप CV के द्वारा ही अपने जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरह का जॉब हो. आपके कैंपस प्लेसमेंट आ रहा है आपके कॉलेज में, या आप किसी जॉब कंसल्टेंट के द्वारा अप्लाई कर रहे हैं, या आपने अपना प्रोफाइल naukri.com, monster.com या शाइन जॉब्स या टाइम्स जॉब्स या किसी और जॉब पोर्टल में आपने अपना प्रोफाइल रजिस्टर किया है, वहां भी आप अपने CV के द्वारा ही जॉब में अप्लाई कर सकते हैं. तो यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब. किसी भी जॉब में जब आप अप्लाई करेंगे तो अपने CV के जरिए ही अप्लाई कर सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है? यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस बाय सेंडिंग योर CV, हेंस रिड्यूसेस योर फिजिकल एफर्ट्स. जब आप CV बना लेते हैं तो आप ईमेल के जरिए एक साथ 10 कंपनीज में, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आप अपनी CV भेज सकते हैं. उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको खुद से जाना नहीं है, तो आपकी फिजिकल एफर्ट्स कम होती है अगर आपने अपने CV बनाया है और आप ईमेल के थ्रू भेज दे रहे हैं. Isn't it? और इंपॉर्टेंस क्या? योर CV इज योर एम्बेसडर. दिस क्रिएट्स योर इंप्रेशन इन योर एब्सेंस. आपका CV आपका एम्बेसडर है. अगर आपको इफेक्टिव CV राइटिंग स्किल्स आपके पास है तो इंटरव्यू में आपका नंबर आने से पहले ही आपका CV आपके बारे में एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट कर देगा. यानी अगर पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट हो गया, इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर को आपके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है. एम्प्लॉयर इज इंटरेस्टेड टू इंटरव्यू यू. आपका इंटरव्यू लेकर के देखना चाहते हैं कि क्या ये बंदा सिलेक्ट करने के लायक है या नहीं. आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग इंटरव्यू. इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी अगर आप इफेक्टिव CV राइटर हैं और आपका CV आपका एम्बेसडर बनके आपके बारे में एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है इंटरव्यू का मौका आने से पहले ही. तो ऐसा अपॉर्चुनिटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अ गुड CV क्रिएट्स गुड इंप्रेशन ऑफ यू. अच्छी CV अच्छी इंप्रेशन क्रिएट कर देगी. A bad CV can create a bad impression and you may lose the chance of an interview. CV अगर अच्छी नहीं होगी तो इंप्रेशन क्रिएट नहीं होगा या लूज इंप्रेशन हो जाएगा. लूज इंप्रेशन हो गया तो फिर हो सकता है कि इंटरव्यू का मौका ही नहीं मिले. हमने अप्लाई तो किया लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई. ऐसी सिचुएशन क्यों होती है? इसी वजह से होती है बिकॉज CV was not effective. Isn't it? और इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? Your CV can get you shortlisted for further rounds of interview. इफेक्टिव CV है, रेलिवेंट CV है
सीवी में कंपनी को लगता है कि ये बंदा मेरे लिए रेलिवेंट है, तो आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट की जाएगी, आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लिया जाएगा, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के बाद फिर आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, योर सीवी इटसेल्फ. And but at last, in your absence, your CV has only a few seconds to attract the attention of the employers. जो हमने अभी आपको इंट्रोडक्टरी हिस्से में बताया कि आपकी सीवी के पास सिर्फ कुछ सेकंड्स हैं, उन्हीं कुछ सेकंड्स में वो आपके बारे में एक पॉजिटिव इंप्रेशन अगर क्रिएट कर देती है आपकी सीवी, तो आपको इंटरव्यू का चांस मिल जाएगा, बल्कि कंपनी आपके सिलेक्शन में इंटरेस्टेड भी होगी, isn't it? तो अगर आपकी सीवी आपके एम्प्लॉयर के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है कि whether this person is able or not, I am interested to take interview, I want to check whether the person is able really or not, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव और एडवांटेजियस सिचुएशन है जब आपका एम्प्लॉयर आप में इंटरेस्टेड हो चुका है, अब वो चेक कर रहा है कि आप सचमुच में लिए जाने के लायक हैं या नहीं, तो ये एक एडवांटेजियस पोजीशन है. This can be created only on the basis of effective CV. Now, अब हम लोग सीवी पे बात करें कि सीवी कैसे बनाएंगे और सीवी के कंपोनेंट्स क्या होंगे और उसमें सीक्वेंस क्या होगा. हम लोगों ने बात किया कि सीवी आपकी एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, तो उसमें सीक्वेंस क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन वो क्या होगी, कैसे होगा, सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन, उसके बाद कौन सी इंफॉर्मेशन, उसके बाद कौन सी इंफॉर्मेशन, isn't it? सीवी लिखने में इस सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना बेहतर है आपके लिए, isn't it? लिखने के अलावा, ये सीक्वेंस के अलावा राइटिंग कन्वेंशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट. लिखा किस अंदाज में, कैसे फोंट से आपने लिखा है, किस तरह से हेडिंग्स प्रोमिनेंट हो रही हैं, उसका भी सिस्टम है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो अब हम लोग बात करें कंपोनेंट्स ऑफ सीवी. आपने जो सीवी लिखा उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे. सबसे पहला है पर्सनल डिटेल. पर्सनल डिटेल्स मींस आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी आपका सबसे पहला आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल और आपका एड्रेस, उसी के साथ साथ आपकी एक फॉर्मल फोटो. यह पहला हिस्सा हो गया आपके सीवी का, पर्सनल डिटेल्स में. सेकंड हिस्सा इज इंट्रोडक्शन. दूसरा हिस्सा इंट्रोडक्शन है. लेकिन इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन हियर. सीवी के अंदर सेकंड स्टेप इंट्रोडक्शन है, तो इस इंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस इंट्रोडक्शन. एक्चुअली आप पूरी सीवी में जो अपने बारे में लिख रहे हैं उसका जिस्ट है ये इंट्रोडक्शन, उसका जिस्ट है ये इंट्रोडक्शन. जैसे आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, जितने दिन का एक्सपीरियंस है, जितने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोमिनेंट स्किल्स हैं और जिस तरह के आपकी पर्सनालिटी है, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यही इंफॉर्मेशन आपने अपने पूरी सीवी में लिखा है. अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है, अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है, अपने इंडस्ट्रियल अपने वर्क एक्सपीरियंस को आपने लिखा है, इंटर्नशिप लिखा है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स लिखा है, अपने प्रोफेशनल स्किल्स लिखे हैं, अपनी पर्सनैलिटी के इंपॉर्टेंट ट्रेट्स लिखे हैं. सारी इंफॉर्मेशन जो आपने लिखी है अपने सीवी में, उसका जिस्ट इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, isn't it? जैसे अगर आपके पास आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं या जिस भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, तो रेलेवेंट कंटेंट आप लिखेंगे. जैसे अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस 2 इयर्स आप इंट्रोडक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं. अ मैनेजमेंट प्रोफेशनल या अ मार्केटिंग प्रोफेशनल विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, इस तरीके से आपने लिखा. तो इंट्रोडक्शन में आपने मान लिया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपने 2 साल काम किया है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन क्या लिख रहे हैं, अ मैनेजमेंट प्रोफेशनल with 2 years of proven track record and experience in real estate industry. तो ये 1 लाइन और 1.5 लाइन का इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया. इसके अलावा किसी और बात पे एम्फसाइज अगर आप करना चाहते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वैकेंसी,
जो वैकेंसी जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप कुछ और इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन में लिखना चाहते हैं या आपको लगता है कि इसमें लिखना चाहिए तो आप इंट्रोडक्शन में और इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें आप कि आपका जो इंट्रोडक्शन है दिस शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ यू ऑल टुगेदर एंड योर सीवी कंप्लीटली। ये दूसरा कंपोनेंट हो गया आपके सीवी का। तीसरे कंपोनेंट पे बात कीजिए, करियर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव में जो आपकी इमीडिएट जरूरत है, you need not, if you are a fresher, you need not write a long-term career objective here. You need to write your career objective, immediate career objective. अभी जो आपका career objective है, यानी आप कंपनी में अप्लाई जो कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें अप्लाई करने का जो आपका मकसद है उसको आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये थर्ड कंपोनेंट हो गया। फोर्थ कंपोनेंट इज योर क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस में आपकी क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है जिस इंस्टीट्यूशन से किया है आपने और जिस साल में किया है, ये डिटेल्स आप देंगे। तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द लेटेस्ट क्वालिफिकेशन। ध्यान से इस बात को सुनिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अगर आप मास्टर्स हैं तो अपनी जो क्वालिफिकेशन आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम योर मास्टर्स, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बस इतना ही काफी है। उसके साथ साथ और सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं तो वो आप लिखेंगे। गलती लोग ये करते हैं कि दे स्टार्ट फ्रॉम 10th, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर्स। सो दिस इज नॉट राइट सीक्वेंस। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा। असेंडिंग ऑर्डर में आप ना एक्सपीरियंस लिखना है और ना ही क्वालिफिकेशन लिखना है। आपको लेटेस्ट जो सबसे बाद में है वो सबसे पहले लिखना है, उसके बाद फिर आप बैकवर्ड टाइम के लिहाज से जाएंगे। तो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन पहले, मास्टर्स आपने किया तो मास्टर्स, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसकी भी जरूरत नहीं है आमतौर पे। सर्टिफिकेट्स जो आपने किया है वो लिखेंगे। ये 4 कंपोनेंट सीवी के आपने लिखे जाने। पांचवा कंपोनेंट है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस जिन्होंने वर्क किया है किसी कंपनी में वो वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे, और जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उनको इंटर्नशिप उन्होंने अगर किया है तो वो मेंशन करेंगे, और जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके बाद फिर उनका जो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वगैरह, वो उसको लिखेंगे। लेकिन ये बेहतर है, किसी भी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू बी एवरी कैंडिडेट एंड एवरी एज जॉब एप्लीकेंट should possess a practical approach। प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए, और प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि कंपनी इज लुकिंग फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर इज नॉट लुकिंग फॉर अ स्टूडेंट। एम्प्लॉयर को स्टूडेंट नहीं चाहिए, उसको एम्प्लॉय चाहिए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वेदर आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज एन एम्प्लॉय और नॉट। आपको अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है वो देखना और समझना होगा। आप एप्लीकेंट हैं, आप जॉब के एप्लीकेंट हैं, कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो आप एम्प्लॉई हैं या नहीं, यानी आप एम्प्लॉई बनने के लायक हैं या नहीं। कंपनी इज लुकिंग फॉर दिस एस्पेक्ट। तो यू नीड टू सी योरसेल्फ फ्रॉम द कंपनीज आईज। कंपनी की निगाह से आप अपने आप को देखें तो आप कंपनी की एक्सपेक्टेशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए कंपनी को एम्प्लॉय के एटीट्यूड का बंदा चाहिए। तो इसलिए आपको चाहिए कि ड्यूरिंग एजुकेशन यू मस्ट डू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, मल्टीपल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, so that you have a lot of इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स आपके पास बहुत सारे हों ताकि आप इंडस्ट्री में नए ना हो और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को, वर्क के प्रोफेशनलिज्म्स को, कंपनी के एक्सपेक्टेशंस को आप समझ सकें, और उसी के मुताबिक फिर कंपनी आपके अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट उसी तरीके से हो और कंपनी आपको लेने में कंपनी को आसानी।
isn't it? So you need to understand your situation practically. आपको अपनी सिचुएशन को प्रैक्टिकली समझना जरूरी है और कंपनी की निगाह से अपने आप को देखना जरूरी है। इसी में आपकी कामयाबी आसान हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी कामयाबी आसान नहीं होगी बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो हमने अभी क्या बताया आपको? पांचवा कंपोनेंट बताया वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस जिसके पास एक वर्क से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, यानी एक कंपनी में काम किया है या 2-3 कंपनी में उसने काम किया है, तो उनको कैसे लिखना है? वो भी लेटेस्ट पहले होगा, उसके बाद फिर उसके पहले, उसके बाद फिर उसके पहले, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। इज दिस क्लियर? ये 5 कंपोनेंट अभी हमने आपको बताए। अब आप आगे देखें वर्क एक्सपीरियंस के। वर्क एक्सपीरियंस जिसके पास है वो वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे, उसके बाद फिर इंटर्नशिप्स लिखेंगे। लेकिन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर इंटर्नशिप्स लिखेंगे, और वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है और इंटर्नशिप्स भी नहीं है तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे? रिसर्च वर्क एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। इस बात को आप समझ लें, जिस कैंडिडेट के पास कोई इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं है, कोई रिसर्च वर्क नहीं है, कोई इंटर्नशिप नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कंपनी के लिए यानी एम्प्लॉयर के लिए ये बहुत दिक्कत की बात है कि वो आपको सिलेक्ट कर ले, isn't it? और कंपनी अगर सिलेक्ट कर भी लेती है तो वो सैलरी आपको दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। सैलरी आपको मिल जाए उसके लिए जरूरी है कि आप कंपनी का वो काम कर दें, वो काम कंप्लीट करें जिस काम के लिए कंपनी ने आपको हायर किया है। यानी कंपनी हैज हायर्ड एन एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉय हैज टू कंप्लीट द टास्क। ये प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन है और यही होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच यही है, जिस टास्क के लिए कंपनी ने आपको हायर किया है उस टास्क को पूरा करने के लायक आपको पहले पढ़ाई के वक्त में ही बन जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के जरिया, रिसर्च वर्क के जरिया, इंटर्नशिप के जरिया। अगर आपका कॉलेज इतने एक्सपोजर्स हो सकता है कि नहीं दिया, या आपने दिए हुए एक्सपोजर को अटेंड नहीं किया, तो बेहतर आपके लिए यह है कि आप वैसी ट्रेनिंग अटेंड कर लें, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आप ज्वाइन कर लें, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स कर लें, ताकि आपको इंडस्ट्री के बारे में अच्छा खासा आइडिया, अच्छा खासा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर हो जाए, सो दैट दे विल हेल्प यू इन योर एम्प्लॉयमेंट सक्सेस। तो सीक्वेंस आपके सीवी में छठा सीक्वेंस क्या है? रिसर्च वर्क एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। इसमें भी वही सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे, जो लेटेस्ट है उसको सबसे पहले, उसके बाद फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखेंगे। रिसर्च वर्क और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के बाद अगला सीक्वेंस है आपकी सीवी के लिए सेमिनार एंड वर्कशॉप। जो सेमिनार्स आपने अटेंड किए हैं और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स आपने अटेंड किए हैं एक एक दिन के, वो आप लिखेंगे। और यहाँ भी वही सीक्वेंस में आप वही सिस्टम फॉलो करेंगे, जो सबसे आखिरी में है वो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे। यहां तक आपकी सीवी की मेन इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद जो इंफॉर्मेशन बची है वो क्या है? अदर स्किल्स। तो अदर स्किल्स मींस व्हाट? यहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी के वो ट्रेट्स लिखेंगे और वो स्किल्स लिखेंगे जिन स्किल्स और जिन क्वालिटीज की बेसिस पे आपको आपके जॉब में मदद मिलेगी, यानी जो स्किल्स कंपनी के लिए रेलिवेंट है, isn't it? So you have to be careful about, you need to develop relevant skills in your personality, and you need to develop your personality as per your own career success. आपकी अपनी करियर की सक्सेस के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना चाहिए, isn't it? अब इसमें यहाँ पे अदर स्किल्स की बात हो रही है तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ आपके लिए ऐड कर दूं। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, उसके साथ साथ आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स, इसेंशियल करियर स्किल्स, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, पर्सनल इफेक्टिवनेस, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, इट इज ये सब क्या है? ये सब आपकी पर्सनैलिटी के स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि
इनकी आपको जरूरत है। एज सुन एज यू ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ही आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, so are you still a student? You are not a student. Now you are a professional. Then you have to behave like a professional. You have to communicate like a professional. You have to meet like a professional. You need different forms of business communication. You need oral forms of different formal communication. You need meeting skills. You need reporting skills. You need customer handling skills. You need product demonstration skills. You need counseling skills. You need instruction, or if you are at managerial position, or if you are team leader, if you are going to become a team leader, you will have to lead your team. You will have to give instructions, clear instructions to your juniors and team members. Etc. These are what? These are relevant skills. These are some of the communication skills. You need executive skills. You need managerial skills, team management skills, team membership, team spirit, team contribution, team management, team development, team leadership. These all are what? These all are managerial abilities. Do we understand this? There are HRM skills. There are marketing research skills, means survey skills, promotion skills, sales skills, customer handling skills, customer care and research and development skills, etc. There are different types of skills that you need in your organization, isn't it? So आप अपने CV में सेमिनार एंड वर्कशॉप्स के बाद अपने रेलिवेंट प्रोफेशनल स्किल्स को लिखते हैं। उसके बाद फिर आप अपने पर्सनल कुछ हॉबीज और इंटरेस्ट को लिखते हैं अपने CV के अंदर, और आखिर में आपकी वो पर्सनल डिटेल्स जो अभी बची हुई है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट या आपका परमानेंट एड्रेस, आपकी नेशनैलिटी, आपका मैरिटल स्टेटस, etc, उसको आप आखिरी हिस्से में अदर डिटेल्स में लिखते हैं। अदर डिटेल्स का मतलब ये पर्सनल डिटेल्स, जो भी लेफ्ट ओवर डिटेल्स है वो आप लिखते हैं। उसके बाद आप अपने CV में आखिरी हिस्से में CV में आप अपना सिग्नेचर लिखते हैं, और सिग्नेचर के साथ साथ आप एक डिक्लेरेशन भी देते हैं कि कही हुई सारी बातें ये सच हैं। You give a declaration that all the information provided in this CV are correct. तो ये आपके CV के कंपोनेंट्स हो गए, और CV के कंपोनेंट्स की सही सीक्वेंस होगी। CV में क्या क्या लिखेंगे वो अभी हमने आपको बता दिया। सबसे पहला पर्सनल इंट्रोडक्शन, उसके बाद इंट्रोडक्शन, करियर ऑब्जेक्टिव, क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप्स, रिसर्च वर्क और एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स, अदर स्किल्स, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, और लास्ट योर लेफ्ट ओवर पर्सनल इंफॉर्मेशन, और आखिरी में सिग्नेचर एंड डिक्लेरेशन। वी हैव कवर्ड कंपोनेंट्स ऑफ CV। CV के कंपोनेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने आपको क्वालिफिकेशंस में भी हमने आपको बता दिया क्वालिफिकेशन का सीक्वेंस क्या होगा। वर्क एक्सपीरियंस में भी सीक्वेंस किस तरह से आप लिखेंगे, लेटेस्ट को पहले लिखना है। सेमिनार इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में भी सीक्वेंस आप कैसे लिखेंगे, जो लेटेस्ट है उसको पहले लिखना है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेशन पे आप आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ CV। आपकी CV की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्वालिटीज होनी चाहिए, इस बात को ध्यान से सुनिए। शुड बी करेक्ट इन फॉर्मेट एंड लैंग्वेज। आपका CV फॉर्मेट में करेक्ट हो। तो फॉर्मेट में एक चीज हमने अभी आपको क्या बताया, सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी वो इसी करेक्ट जो तरीका हमने आपको बताया उसमें आप फॉलो करें। लेकिन उसके अलावा आप क्या है कि हाउ टू राइट, व्हाट वुड बी दी फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या होगा, हेडिंग का फॉन्ट साइज क्या होगा, हेडिंग के अंदर में जो सब हेडिंग्स हैं अगर या कंपोनेंट्स जो भी हैं उनका फॉन्ट साइज क्या होगा, फॉन्ट बोल्ड होगा या बोल्ड नहीं होगा, etc। वर्टिकल लाइन किस तरीके से मेंटेन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं।
ये इसको राइटिंग कन्वेंशंस कहते हैं। जो आप लिखेंगे, जिस डिजाइन में आप लिखेंगे, वो राइटिंग कन्वेंशंस। तो यू नीड टू फॉलो फॉर्मल राइटिंग कन्वेंशंस। उस पर अगर आपको जरूरत होगी तो आप हमसे पूछ लेंगे। लाइव सेशन की जरूरत होगी तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसमें यू डू नॉट नीड ट्रेनिंग। एक्चुअली ट्रेनिंग की आपको जरूरत नहीं है। आप किसी लिखी हुई सीवी को अगर आप देखेंगे तो उसी के मुताबिक आप अपने कंटेंट को भी लिख सकते हैं कि हेडिंग किस तरह की होगी, उसका फॉन्ट क्या होगा, अंदर कंटेंट कैसे होंगे और उसका फॉन्ट क्या होगा, वर्टिकल लाइंस किस तरीके से हमको मेंटेन करना है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक शुड बी कॉन्साइज एंड स्पेसिफिक। आपकी सीवी कॉन्साइज यानी सिर्फ उतना जितने की जरूरत है। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक जिस चीज की जरूरत है, जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है, उस पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट उसी की बात करें और डायरेक्ट अपने अंदर उन्हीं स्किल्स को आप सीवी में, अपने उन्हीं स्किल्स को आप सीवी में लिखें जो स्किल्स जॉब के लिए रेलेवेंट है। हो सकता है कि आपके पास और भी स्किल्स हैं, लेकिन वो स्किल्स अभी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के मुताबिक नहीं है या इररेलेवेंट है। तो यू नीड नॉट राइट दैट स्किल, क्योंकि वो आपके इस जॉब के लिए फायदेमंद नहीं होंगे। जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी जॉब से रिलेटेड स्किल्स होना चाहिए, वही आपके लिए बेहतर है। थर्ड पॉइंट पे हमने लिखा शुड बी एज पर जॉब, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपकी सीवी होनी चाहिए। और जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपकी सीवी ही नहीं बल्कि आपका टैलेंट होना चाहिए, ताकि इंटरव्यू में आप कंपनी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपने स्किल्स को प्रेजेंट कर सकें और साबित कर सकें। Isn't it? अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शुड रिप्रेजेंट द नीडेड प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी के उस प्रोफेशनल एस्पेक्ट को आपका सीवी रिप्रेजेंट कर सके जिसकी कंपनी को जरूरत है। एज फॉर एग्जाम्पल, कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, फाइनेंस और अकाउंटिंग, तो आपका हर बात को चेक करने का एटीट्यूड, दिस एटीट्यूड ऑफ योर पर्सनैलिटी, इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव, बिलीव ना करना, क्रॉस चेक करना, बार बार क्रॉस चेक करना, तो दिस ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी इज रेलिवेंट फॉर द जॉब प्रोफाइल। लेकिन जब आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके टॉकेटिव होना ये वन ऑफ द नीडेड क्वालिटी। लेकिन टॉकेटिव, बीइंग टॉकेटिव इज नॉट एनफ। यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट नीड, कस्टमर नीड की अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर नीड अवेयरनेस, कस्टमर हैंडलिंग, प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कस्टमर्स नीड, कस्टमर के नीड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनको समझना, कस्टमर को कस्टमर की नीड से अवेयर भी करा देना और कस्टमर को कस्टमर की नीड को पूरा करने के लिए कॉन्शियस कर देना। इसका मतलब यह है कि टू मेक योर कस्टमर फील देयर ओन नीड। इस तरह की एबिलिटी फिर रेलिवेंट है किसके लिए? जॉब प्रोफाइल के लिए। तो जिस तरह की जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी तरह के जॉब के मुताबिक आपकी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स रिप्रेजेंट हो सके, आपकी सीवी वैसे ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके जॉब प्रोफाइल में किसी पर्टिकुलर तरह की पर्सनैलिटी की जरूरत है और आप अपने सीवी में उसका रेलिवेंट नहीं बल्कि इररेलेवेंट पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट लिख रहे हैं, तो आपकी सीवी आपके जॉब में हेल्प नहीं कर पाएगी बल्कि आपकी सीवी नुकसान पहुंचा सकती है। Isn't it? अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? Should attract the attention and interest of the employer. आपकी सीवी, your CV should be able to attract interest of the employer. जैसा कि बिगिनिंग में हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने we talked. Are you listening to me, dear participants?
Mohammad Sharik, Ayush. Mohammad Sharik, Ayush. So your voice is not coming. Voice is not clear. Now it's clear. Okay. I Please am talking continue. about your CV should attract the attention and interest of the employer. तो आपका एम्प्लॉयर आप में कैसे इंटरेस्टेड हो सकता है, आपकी सीवी देख करके कैसे अटेंशन अट्रैक्ट कर सकती है आपकी सीवी? एज फॉर एग्जांपल, अगर वैकेंसी जिस इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एचआर इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, रिक्रूटर की पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो आपने अपने सीवी में रिक्रूटमेंट स्किल्स लिखा है, एचआरएम एक्सपर्टाइज लिखा है, इंटरव्यू कोऑर्डिनेशन लिखा है, सीवी अप्रेजल लिखा है, इंटरव्यू अप्रेजल लिखा है, तो ये वो स्किल्स हैं जो आपके एम्प्लॉयर के लिए और वैकेंसी के मुताबिक हैं। तो अब जब आपके इंटरव्यूअर ने, आपके एम्प्लॉयर ने आपके इन रेलिवेंट स्किल्स को आपकी सीवी में देखा, तो वो आप में इंटरेस्टेड हो जाएगा कि ये बंदा बिल्कुल रेलिवेंट है, इसके पास बिल्कुल वही स्किल्स है जिस स्किल्स की हमें जरूरत है। तो योर सीवी वुड क्रिएट इंटरेस्ट इन द एम्प्लॉयर फॉर यू। तो आपकी सीवी आपके एम्प्लॉयर में इंटरेस्ट क्रिएट कर देगी। कैसे अटेंशन कैसे अट्रैक्ट करेगी? रेलिवेंट स्किल आपके सीवी पे लिखा होगा तो अटेंशन ग्रैब होगा, isn't it? अटेंशन ग्रैब होगा, रेलिवेंट स्किल्स पाएंगे आपकी सीवी में तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो वो आपका इंटरव्यू लेना चाहेंगे, चेक करेंगे इंटरव्यू लेकर के वेदर यू आर रेलिवेंट, वेदर यू आर रियली कॉम्पिटेंट इनफ और नॉट, isn't it? ये एडवांटेज मिलेगा। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी सीवी का क्या होना चाहिए? योर सीवी शुड क्रिएट पॉजिटिव इमेज इन योर एब्सेंस। आपका सीवी आपके बारे में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर दे। तो हाउ योर सीवी कैन क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज? आपके बारे में आपका सीवी आपके एब्सेंस में, अभी आप मौजूद नहीं हैं कंपनी में, आपने अपना ईमेल भेज दिया, ईमेल के जरिए अपना सीवी भेज दिया है, तो आपका एम्प्लॉयर आपके बारे में एक पॉजिटिव इंप्रेशन कैसे ले सकता है? तो आपका सीवी आपके बारे में पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकता है। कैसे कर सकता है? मेंशन relevant skills, relevant qualification, mention relevant qualification, mention relevant work experience, mention relevant internship, mention relevant industrial projects, etc, and mention relevant skills। जो relevant skills आपने सीखे, relevant means what? relevant to the job। जिस जॉब में और जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके मुताबिक रेलिवेंट स्किल्स को, रेलिवेंट क्वालिफिकेशन, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, रेलिवेंट इंटर्नशिप, रेलिवेंट सेमिनार्स, रेलिवेंट वर्कशॉप्स, रेलिवेंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, यह आपने अपने सीवी में लिखा है। तो आपका सीवी आपके बारे में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेगा कि इस बंदे ने, इसी में जिस तरह की वैकेंसी हमने निकाला उसी वैकेंसी के मुताबिक इस बंदे ने डिफरेंट तरह के एक्सपोजर्स पे काम किया है। तो आपका पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो गया। पॉजिटिव इमेज क्रिएट होने से क्या होता है? इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि हम इस बंदे को लेना चाहते हैं। अब कंपनी ये चेक करेगी वेदर आप उसमें लायक सचमुच में हैं या नहीं है। वो इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू में बुला करके कंपनी चेक करती है। तो इंटरव्यू दरअसल होता क्या है? इंटरव्यू दरअसल कंपनी आपको चेक करना चाहती है वेदर you are able for my company for this position or not। आप मेरी कंपनी के लायक, इस पोजीशन के पे काम करने के लायक हैं या नहीं है, यही कंपनी चेक करती है इंटरव्यू में। तो you need to understand the main spirit of the interview। you need to understand when you are applying for the job, you need to understand
that your employer is looking for what, आपका एम्प्लॉयर किस चीज के लिए तलाश कर रहा है। जब आपने अपने एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट को समझा और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को आपने साबित किया, योर एम्प्लॉयर वुड सेलेक्ट यू इन द इंटरव्यू, आपको सेलेक्ट कर लेगा, isn't it? और इसीलिए आपको अपने आप को और अपने सीवी को कंपनी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही डेवलप करना चाहिए। सीवी भी कंपनी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखना चाहिए और अपने अंदर जो स्किल्स का डेवलपमेंट है वो भी अपनी कंपनी यानी एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने स्किल्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो सीवी में जो आपने रेलेवेंट स्किल्स लिखा है उन्हीं रेलेवेंट स्किल्स में कंपनी इंटरेस्टेड है, उन्हीं को आपको इंटरव्यू में साबित भी करना होता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवी, जिसमें आखिरी बात आपने क्या देखा, शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। आपकी सीवी में सारी इंफॉर्मेशन वो रेलेवेंट और ऑथेंटिक होनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने सीवी में लिखा है, सीवी के सारे कंपोनेंट्स हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में आखिरी कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया कि आपकी सीवी में मौजूद सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसमें कोई भी झूठ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी सीवी को देख करके इम्प्रेस होता है, वो ये पाता है कि इस सीवी के अंदर रेलेवेंट स्किल्स हैं, ये बंदा रेलेवेंट लग रहा है। तो जब कंपनी ने आपके सीवी के अंदर रेलेवेंट स्किल देखे, आपको इंटरव्यू का मौका दिया, इंटरव्यू में अब वो इसी बात को चेक करेगा वेदर यू हैव दिस स्किल्स और नॉट। तो अगर आपने सही, आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है तो आप उसका सही जवाब देंगे, आप रेलेवेंट जवाब देंगे, तो इससे पता चलेगा कि आपने सही बातें लिखी हैं। लेकिन अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो ऑर्गेनाइजेशन को इस बात का अंदाजा हो सकता है कि शायद आपने सही नहीं बोला है, वो गलत बोला है, isn't it? हम लोगों ने अभी काम कंप्लीट कर लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवी। अब सीवी के कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ क्वालिटी हमने आपके साथ डिस्कशन कर लिया, सीवी के सारे कंपोनेंट्स हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, सीक्वेंस, सीवी के अंदर सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगी वो हमने सारे डिस्कशन कर लिया, क्वालिटीज भी डिस्कशन कर लिया। अब सीवी आखिरी टॉपिक है कि सीवी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये टॉपिक एक्चुअली आपके एक रिवीजन की तरह हो जाएगा। अभी जो हम लोगों ने तमाम डिस्कशन किया है उसका एक रिवीजन हो जाएगा। आपने सीवी बनाई, सीवी से आपने अप्लाई किया, आपका सीवी बनाने का मकसद क्या है, यानी क्या मकसद होना चाहिए, इसको ध्यान से सुने। सीवी लिखने का मकसद है टू अप्लाई फॉर जॉब्स, isn't it? यहाँ पे हम आपको एक बात और मेंशन कर दें, आपके लिए आसानी होगी। अगर आप किसी एक कंपनी में एक तरह की जॉब पे आपने अप्लाई किया, दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास है दूसरी कंपनी में, लेकिन वो पोजीशन दूसरी तरह की है, तो आपको इस जॉब के लिए इस जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सीवी लिखना चाहिए और दूसरी जॉब के लिए दूसरी जॉब के रिक्वायरमेंट के मुताबिक दूसरी सीवी आपको लिखना चाहिए। इस बात को ध्यान से सुनिए। सिमिलर एक ही सीवी अलग अलग प्रोफाइल की जॉब के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये पहले से तय हो चुका कि आपको इंटरव्यू का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी सीवी खुद ही आपके बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ यू इन द आईज ऑफ द एम्प्लॉयर। तो सीवी का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। हमने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया, एक तरह की जॉब है तो एक तरह की इफेक्टिव सीवी बनाइए, दूसरी तरह की जॉब में भी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर दूसरी तरह की इफेक्टिव सीवी भी बनाइए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या, टू क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ यू इन द आईज ऑफ द पोटेंशियल एम्प्लॉयर। आपकी सीवी लिखने का मकसद क्या होना चाहिए, isn't it? Be very much clear about this. कॉलेज से क्वालिफाई होकर के निकले, जॉब में अप्लाई करना है, सीवी हमने बनाया, कहीं से भी देख करके अप्लाई कर दिया, isn't it? Don't do it. इस तरह से नहीं करना है। जिस पोजीशन में हम अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन के मुताबिक इफेक्टिव सीवी बनाइए। दूसरी वैकेंसी में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी पोजीशन है, उस पोजीशन के मुताबिक आप अपनी इफेक्टिव सीवी बनाइए। इफेक्टिव सीवी कैसी होती है हमने आपको बता दिया, एज
स्टडी जेडी एंड जेएस, कंपनी के ऊपर रिसर्च कीजिए, जेडी पढ़िए यानी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए, और जेएस पढ़िए, जॉब स्पेसिफिकेशन पढ़िए। उन दोनों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपने सीवी कंप्लीट कीजिए। रेलिवेंट स्किल्स लिखिए, रेलिवेंट क्वालिफिकेशन, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, रेलिवेंट इंटर्नशिप, रेलिवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, ये तमाम आप लिखें ताकि आपकी सीवी कंपनी को यानी एम्प्लॉयर को रेलिवेंट लगे, उसको लगे कि हाँ यही बंदा मुझे चाहिए, यानी एक पॉजिटिव इंप्रेशन आपका सीवी आपके बारे में क्रिएट कर सके एम्प्लॉयर की निगाह में। अगली इंपॉर्टेंस क्या है? टू एंश्योर अ सूटेबल चांस ऑफ इंटरव्यू। जब आपने कंपनी में अप्लाई किया है तो इंटरव्यू का मौका मिलना चाहिए। इंटरव्यू का मौका उस बंदे को मिलेगा जिसकी सीवी रेलिवेंट बात बता रही है। लेकिन जिस बंदे ने, मान लिया कि अगर एचआर की पोस्ट है, एचआर की पोस्ट है, किसी बंदे ने सीवी अप्लाई किया है और उस सीवी में अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन सिर्फ है और कोर एचआर का जॉब है, मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन है और एचआर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो क्या कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी? रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो इंटरव्यू का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सीवी का मकसद क्या होना चाहिए कि आपको इंटरव्यू का चांस मिले, आपके बारे में पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट हो जाए, सीवी आपका इंटरव्यू का चांस आपको मिले। अब अगला है टू ड्राइव द इंटरव्यू एंड क्वेश्चंस टू योर डिजायर्ड फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए आपके पास अच्छे सीवी राइटिंग स्किल्स के अलावा आपके पास इंटरव्यू विनिंग इंटरव्यू एटिकेट्स आपके पास होना चाहिए। इस पॉइंट को, चौथे पॉइंट को ध्यान से सुनिए। मत बोल भैया, मेरा कास्ट अपने माइक को आप लोग ऑफ रखें पार्टिसिपेंट्स। यस सर, हमारा है। टू ड्राइव द इंटरव्यू एंड क्वेश्चंस टू योर डिजायर्ड फील्ड, ये इंटरव्यू स्किल्स का एक हिस्सा है, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरव्यू को और क्वेश्चंस को अपनी फील्ड में लेकर के आ जाइए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इंटरव्यूअर कौन सा सवाल पूछेगा? वो तो अपना सवाल पूछेगा, लेकिन यहां आपसे क्या कहा जा रहा है कि इंटरव्यूअर को इंटरव्यू को अपने फील्ड में ले आइए। ऐसा कैसे होगा? ऐसा तब होगा जब आपने अपनी डोमेन क्वालिटीज, अपनी एक्सपर्टाइज को सीवी में लिखा है और आपने उस एक्सपर्टाइज को, उस डोमेन क्वालिटी को आपने सीवी में लिखा है जिसकी जरूरत कंपनी को है। आपने वही स्किल लिख दिया जिसकी कंपनी को तलाश है, कंपनी फौरन सवाल वही पूछेगी। कौन सा सवाल पूछेगी? जो सवाल आप पूछना चाह रहे थे। कौन सा सवाल पूछना चाह रहे थे? मेरे फील्ड का सवाल, isn't it? तो you need to understand the whole situation। सीवी की सिचुएशन भी समझना जरूरी है, कंपनी की सिचुएशन भी समझना जरूरी है, इंटरव्यू के पीछे क्या, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो आपको समझना जरूरी है, so that you can write your CV effectively and you can and in interview also you can give correct answers and impressive answers कि आप अगला जो सवाल है, अगला सवाल आपकी फील्ड से ही एम्प्लॉयर पूछने लगे। तो इंटरव्यू का एक सेशन हम आपको कंप्लीट सिर्फ इंटरव्यू पे भी एक सेशन देंगे, वो लास्ट सेशन होगा। तो आज तो हम लोग सीवी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन सीवी में ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। लास्ट ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, टू मेक इंटरव्यूअर्स आस्क द क्वेश्चन, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। टू मेक द इंटरव्यूअर्स आस्क द क्वेश्चंस ऑफ योर इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टाइज। तो सीवी को इस तरह से डिजाइन करना कि इंटरव्यूअर वो सवाल पूछने लगे जो सवाल आपके ही फील्ड के हैं और एक्सपर्टाइज के हैं, isn't it? लेकिन आपके क्वेश्चंस जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, कंपनी तभी पूछेगी जब कंपनी को उसकी जरूरत होगी। कंपनी को आपके स्किल्स रेलिवेंट लगते हैं तो कंपनी उसमें इंटरेस्टेड है, और रेलिवेंट नहीं लगते हैं तो फिर कंपनी को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आज हमने आपको इफेक्टिव सीवी बनाने के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ हमने शेयर किया। कुछ सैंपल है, ये सीवी के सैंपल, रेज्यूमे के सैंपल हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। इसकी इमेज है, इमेज हो सकता है क्लियर आपको नजर नहीं आए। तो ये रेज्यूमे का
एक सैंपल है, लेकिन सीवी एक पेज से ज्यादा की हो सकती है क्योंकि उसमें आपको कई डिटेल इंफॉर्मेशन देनी होगी। ये जो आप देख रहे हैं इसमें हो सकता है इमेज कि क्लियर नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इमेज क्लियर नहीं हो, लेकिन इसमें कम इंफॉर्मेशन है। कम इंफॉर्मेशन का मतलब है वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, इंट्रोडक्शन और कुछ स्किल्स इसमें मेंशन है। बट दिस इज अ सैंपल ऑफ रेज्यूमे। रेज्यूमे एक पेज का कॉन्साइज इंफॉर्मेशन। रेज्यूमे ही स्किल आपके लिए काफी नहीं है। हालांकि रेज्यूमे का फॉर्मेट रेडीमेड आ जाता है, उसमें आप रेडीमेड बगैर रेज्यूमे स्किल हुए भी आप उसमें लिख देते हैं, लेकिन सीवी स्किल्स मेनली आपके पास होना जरूरी है ताकि आप अपने सीवी के हर एक कंपोनेंट को समझ सकें और रेलिवेंट स्किल्स को भी समझ सकें और उसको लिख सकें। तो सीवी के सैंपल के लिए वर्ड का फॉर्मेट हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं बाद में। दूसरा भी सैंपल है, ये भी रेज्यूमे का ही एक दूसरा सैंपल है। इस तरीके से बनाया जा सकता है। सीक्वेंस वही है जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। पहला इंट्रोडक्शन, करियर ऑब्जेक्टिव, टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिखें या सिर्फ क्वालिफिकेशन आप लिखें, एक बात है। उसके बाद फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, रेलेवेंट स्किल्स। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने आज सीवी के बारे में डिस्कशन किया। हम लोगों ने डिफरेंस भी डिस्कशन किया, सीवी, रेज्यूमे और बायोडाटा में क्या डिफरेंस है, और आमतौर पे स्टूडेंट्स इन चीजों को एक ही समझते हैं। हमने डिफरेंशिएट करके आपको बताया। सीवी के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, जब भी आप सीवी लिखेंगे तो सीवी के अंदर क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए वो हम लोगों ने डिस्कशन किया। सीवी के कंपोनेंट्स सबसे पहले पर्सनल इंट्रोडक्शन, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशंस, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो इंटर्नशिप, उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स का मतलब आपके इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, उसके बाद सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स, उसके बाद फिर आप अपने रेलिवेंट प्रोफेशनल स्किल्स को लिखते हैं, उसके बाद फिर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन में अपने हॉबीज और इंटरेस्ट को लिखते हैं, और आखिरी में आप अपनी बची हुई पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखते हैं। यानी आपका पासपोर्ट डिटेल या ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनलिटी और सिटीजनशिप, etc। तो सीवी का मेन कंपोनेंट हमने आपको बताया, सीवी की इंपॉर्टेंस हमने आपको बताया, और सीवी के ऑब्जेक्टिव्स आपको बताया। तो आज की मेन लर्निंग में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है सीवी के कंपोनेंट्स और सीवी के ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो आप सीवी लिखेंगे तो सीवी किस बेसिस पे लिखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ सीवी जो हमने आपको बताया वही है। दुनिया की कोई भी सीवी आप, कोई भी बंदा लिखेगा सीवी तो उसी सीक्वेंस में लिखना उसके लिए फायदेमंद है। यही उनकी सीवी की इंफॉर्मेशन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको रिटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ योर सीवी, क्योंकि जब आप अपने सीवी के ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह समझेंगे तो ही आप अपने सीवी को उसी डिजाइन से लिख पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव को भी हम लोगों ने एनफ तरीके से डिस्कस किया, कंपोनेंट्स को भी हमने डिस्कस किया, इम्पोर्टेंस को भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, और फिर सीवी के मीनिंग, रिज्यूमे का मीनिंग और बायोडाटा के मीनिंग को भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, और तीनों के डिफरेंस को हम लोगों ने देखा। आज का सेशन यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज के इस सेशन ने काफी क्लियर इंफॉर्मेशन दी होगी। अब कोई आप लोगों के पास सवाल है आपकी सीवी से रिलेटेड तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। Now, any question from anybody?
यूसुफ नियाज का सवाल है, किस टाइप का इंटरेस्ट इफेक्टिव होगा सीवी राइटिंग में? अच्छा, इनका सवाल ये है कि सीवी लिखने में हॉबीज और इंटरेस्ट जिस सेक्शन में हम लोग लिखते हैं, यानी कि लगभग आखिरी के हिस्से में, तो किस तरह का इंटरेस्ट हम लोगों को लिखना चाहिए ताकि हमारी सीवी अच्छी हो, बेहतर हो। तो ये एक्चुअली इसमें दो पर्सपेक्टिव है और दोनों पर्सपेक्टिव आपको समझना भी चाहिए और दोनों पर्सपेक्टिव को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि जिस तरह की जॉब में आपने अप्लाई किया है, उस जॉब से रिलेटेड इंटरेस्ट आपके लिए फायदेमंद है सीवी में लिखने में, ये एक पर्सपेक्टिव। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि आपकी पर्सनैलिटी के प्रोफेशनलिज्म को जो सपोर्ट करता है वो इंटरेस्ट आप लिख सकते हैं। अब एज फॉर एग्जाम्पल दें तो उससे आप समझेंगे। मान लिया कि किसी ने मार्केटिंग के प्रोफाइल में अप्लाई किया है और उस बंदे का बहुत इंटरेस्ट है लोगों से इंटरव्यू लेना या लोगों से बात करना, रिसर्च करना, उसका बहुत इंटरेस्ट है उसका। तो मार्केटिंग के प्रोफाइल में मार्केटिंग रिसर्च, यानी जो मार्केटिंग का पहला फंक्शन है मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें कंपनी ये बात पता लगाती है कि मार्केट की नीड ही क्या है, मार्केट में किस चेंज की जरूरत है। तो उसको पता लगाने के लिए कंपनी रिसर्च का इस्तेमाल करती है और रिसर्च करने के लिए कस्टमर के क्वेश्चनर के जरिए कस्टमर का सर्वे किया जाता है। सर्वे करने के लिए आपको इंटरव्यू लेना पड़ता है। तो लोगों से बात करना और लोगों की जरूरत को समझना, ये अगर इंटरेस्ट है तो मार्केटिंग के इस फंक्शन में बहुत रेलिवेंट है, इसी का काम ही है, isn't it? तो जब आप इंटरेस्ट अपना लिख रहे हैं तो इंटरेस्ट लिखने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि जिस जॉब में हम अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब में किस तरह का इंटरेस्ट रेलिवेंट होगा। अगर मान लिया कि किसी ने इंटरेस्ट लिखा कि मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, तो ठीक है, उसका ये पर्सनल इंटरेस्ट तो है, लेकिन इससे उसके जॉब में कोई खास या उसके अभी जो अप्लाई उसने किया है उसके एप्लीकेशन में कोई सपोर्ट इससे नहीं मिलेगा। तो जब आप इंटरेस्ट लिख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका इंटरेस्ट भी आपके एप्लीकेशन को सपोर्ट करे। सपोर्ट अगर नहीं कर रहा है तो भी, या आपकी ओरिजिनलिटी है तो फिर आपके पास है। इसीलिए हमने कहा कि दोनों पर्सपेक्टिव से आपको चीजों को समझना जरूरी है। इंटरेस्ट पहला हिस्सा, दैट शुड सपोर्ट योर एप्लीकेशन। दूसरा, इफ दिस इज नॉट सपोर्टिंग, इवन इफ दिस इज नॉट सपोर्टिंग, इफ दिस इज पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, दिस इज। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? जी माशाल्लाह, जी अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह बहुत बढ़िया सेशन रहा। बस एक सवाल है मेरा, जी अगर प्लीज। एक्सपीरियंस बंदा सीवी बनाता है तो उसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, और एक नॉन एक्सपीरियंस अगर पास आउट, न्यूली पास आउट है, तो उसका सीवी का जी, हेडिंग क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा आपका सवाल है और आपके सवाल से यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। एक्चुअली इसमें दो बातों को ध्यान रखना जरूरी है। पहला जो प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल दोनों एप्लीकेंट पे अप्लाई होगा सिमिलरली। तो पहला प्रिंसिपल क्या है वो हम लोग पहले देख लें। एक्सपीरियंस बंदा किसी जॉब में अप्लाई कर रहा है, वैकेंसी निकली है किसी भी कंपनी में उस पोस्ट के लिए जहाँ पे वो बंदा अप्लाई करेगा, तो अपने सीवी की जो हेडिंग लिखेंगे, दैट मस्ट बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट। जैसे मान लिया कि वो पोस्ट है, उस पोस्ट पे चाहिए 10 साल का एक्सपीरियंस, इस एक्सपर्टाइज का बंदा। तो हमारी वही एक्सपर्टाइज है, अगर वही एक्सपीरियंस है, वही एक्सपर्टाइज है, और उन एक्सपर्टाइज में वो भी एक्सपर्टाइज है जो कंपनी ने जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन उस जॉब की जरूरत होती है वो हमारे पास है। तो हम अपने सीवी में दो कंपोनेंट, बल्कि तीनों कंपोनेंट लिखेंगे, यानी कि अपना नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, रिक्वायर्ड स्किल और एडिशनल एक्सपर्टाइज, ये आप अपनी हेडिंग में लिखेंगे। तो उससे क्या होगा कि द फर्स्ट साइट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सीवी विल क्रिएट इंटरेस्ट इन द एम्प्लॉय, इन द रिक्रूटर। रिक्रूटर देखेगा रेलिवेंट सीवी है तो ही शुड लुक इनटू द सीवी। ये पहला हिस्सा, ये एक्सपीरियंस बंदे के लिए भी हो गया। अब जो फ्रेशर्स हैं, तो फ्रेशर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको दरअसल
करना ये चाहिए कि ड्यूरिंग एजुकेशन दे मस्ट एट लीस्ट डू इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, ताकि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट या कम से कम इंटर्नशिप ये जरूर करना चाहिए, ताकि जिस कंपनी में वो अप्लाई कर रहे हैं जिस पोस्ट के लिए, तो अपनी सीवी को रेलिवेंट बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और कम से कम अपनी सीवी को ओपन करवाने के लिए वो सब्जेक्ट में लिख सकें। रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो कम से कम एक्सपोजर, फ्रेशर कैंडिडेट विद एक्सपोजर इन दिस, या फ्रेशर कैंडिडेट विद 5 प्रोजेक्ट्स इन दिस स्किल। तो इस तरह का अगर फ्रेशर कैंडिडेट अपना सीवी की हेडिंग बना रहा है तो वो कंपनी एम्प्लॉयर के लिए आसान होगा उसको ओपन भी करना, इंटरेस्टेड होना और उसमें सवाल पूछना। आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत ही बढ़िया जवाब रहा माशाल्लाह। और ऐसा ही होना चाहिए कि हमें जब जैसे ही पास आउट हो या ड्यूरिंग हम अपना जो पढ़ाई है उस बीच में हमारा इंटर्नशिप होना चाहिए और एटलीस्ट कम से कम 3 से 6 महीने का एक एक्सपोजर होना चाहिए मार्केट में हमें यानी फाइट करने के लिए, क्योंकि रिक्रूटर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ बेटर कैंडिडेट। They look for employees. Students must understand this, that organizations are not looking for students. Organizations are looking for Yes. employees and professionals. Nowadays they are not counting the degrees, they are counting the experience, Experience. expertise they needed. I would, it would be my pleasure if you allow me to introduce you in front of other audience. All the Sure, sure. participants, we all are a lot privileged to have Janab Mohammad Mateen Saab here in this session. He is a highly professional, mashallah, high profile professional in one of the biggest recruiter company of the world, isn't it? So as he is holding a senior managerial position in Smasco in Saudi Arabia. So Smasco is one of the biggest company in Saudi Arabia, and not only in Saudi Arabia, rather one of the biggest company in the world also. So this is a privilege for all of us to have Mohammad Mateen Saab in our session. And I am very much thankful that you have added quite value to our session by asking these questions. Thank you very much. जज़ाकल्लाह खैर। ये मेरे लिए this is a good opportunity for me, like यानी best teacher or advisor or learner, यानी the you can say overall the whatever we need after finalizing our degree, this is the kind of value added leadership what you are doing nowadays. Really it's appreciated, and I'm very happy I had some session during pandemic. Yes, that was Really my, this was added in. This is the like you can in my batch. Thank you. Thank you very much. Really appreciate it. Thank All your efforts without a single money and without you can say you are just giving what you have learned from your side, and this is a special things that such kind of the people's available in our society. Really. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. It's Assalam. it gives worth living. If you don't mind, kindly come on camera so that my viewers can have a look of you. It would be No my issue at pleasure. all. Actually, I was outside, and now I came and I saw your message and I joined it. Thank you very much. Thanks a lot for being with us today. Really, I'm always looking your message when you are going to do such kind of skills program. I'm always trying to have a part of this. Thank you very much. It's And your this is great. yeah. It's your greatness, and mashallah, because your profile is also like this. You are in one of the biggest
manpower company of the world, mashallah. And obviously, this is Yeah, it's going one of the on. biggest company Sure. of the Yeah. country that you are in. And I think each This and is my every pleasure, word and and questions. I go to some yeah. This is my pleasure. I got some better experience from you. I learned a lots of things during this pandemic, and this was very, very interesting for me. Really. Thank you very much. Thanks a lot for appreciation. Thank you, guys. I hope to join every on each training session of Dr. Kashif Raza Khan Saab, and he was really doing a good job. And I hope to support him and to build a good environment in our country and in all over the world. It's really very appreciating, and Inshallah. I hope to support to bring more and more candidate to learn more from him. Inshallah. Inshallah. Thank you very much. Thank you. And soon I would try to organize a webinar and session upon essential employability skills for multiple colleges at one time. I would try to do that. This is one of the need of the youth. Best of luck. Best of luck. Inshallah. Thank Yeah, you very this is much. the Thank needed of the time, and reality is this: you are going and managing things, and this is your force. I hope to learn and earn more and more experience during your each session. Thank you very much. Thank you. Your appreciation means a lot to me and all of us. Thank you very much. So now I am, Inshallah, every time. inshallah. Now I am ending the session. If you have anybody has any question, you can ask. Thank you, Ayush. Thanks a lot for your appreciation. I hope we have already completed the session. So I am ending the session now. Thank you very much. Everybody, thank you. Shukriya. Assalamu alaikum. Assalam.